everyone, very good morning to all of you. And today is basically we are going to start with our we were already doing the salary chapter. So we will continue with our salary chapter and it is going to be completed by today. Okay, so आज जो भी करेंगे आज हमारा लास्ट जो है खत्म हो जाएगा सैलरी का. ठीक है. सो पहले थोड़ा सा लास्ट हमने क्या किया लास्ट क्लास में वो थोड़ा सा एक बार फ्लो वाइज एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सो दैट यू विल रिमेम्बर कि किस किस तरीके से हमने आगे चीजें करी हैं. तो लेट मी जस्ट शेयर. ये आपको सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, so this is something which we had covered in our previous class. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, इनकम अंडर द हेड सैलरी में हमने प्रोविडेंट फंड से स्टार्ट किया था. एंड आई टोल्ड यू प्रोविडेंट फंड इज ऑब्वियसली इट इज ईईई कैटेगरी. व्हाट इज माय ईईई कैटेगरी? It is my exempt category. So at the time when I'm investing into the provident fund, it is exempt. At the time when I'm earning some interest income from my provident fund, again exempt. At the time when I'm withdrawing my money from my provident fund, again it is exempt. So that is the reason the PF, I would say, is my EEE category. Okay. Now I told you about this up to 12% of salary ये हमारा होता है. ठीक है. और फिर सैलरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि सैलरी इंक्लूड्स योर पेंशन एंड स्टाइपेंड एज वेल, राइट? सैलरी इंक्लूड्स योर पेंशन एंड स्टाइपेंड. अब पेंशन में भी इसको सैलरी को मैंने हमेशा इस डिस्कशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज योर बेसिक सैलरी, नंबर 2 इज योर डियरनेस अलाउंस, नंबर 3 is your allowances, and then 4 is your perquisites, and 5th is your retirement benefits. Okay. So the basic salary is going to be my base salary. So based on this basic salary, as you must have seen in the government का जो jobs निकलता है, this is always like 21,000 plus grade A, maybe 90,000 plus grade B, like this. So this is the base salary which I generally use for the purpose of calculating my say perquisites or maybe the retirement benefits. So this is my base salary. What about the DNS allowance? The DNS allowance is basically divided into two categories. Number 1, which is being part of retirement benefits. Number 2, which is not being part of retirement benefits. Okay. So if I talk about DNS allowance, which is being part of retirement benefits, we call it as in terms as well. Okay. In terms means that it is in terms of retirement benefits. And what about DNS allowance, which is not being part of retirement benefits? We call it as not in terms as well. Okay. What about the allowances we have covered? We have taken the Set India Biz. Basically, we had taken the Set India Biz salary slip. And from this, we understood that whatever the allowances we are getting, they are fully taxable except HRA if you're opting for the old tax regime. So HRA, transport allowance, fixed allowance, this is something which we had covered. So we have seen the taxability of these allowances. Then comes your perquisites. We were doing the perquisites and then followed by your retirement benefits. Okay. फिर हमने allowances के बारे में किया था. Allowances में भी मैंने आपको बहुत सारे allowances कराए थे, like children education allowance, HRA, transport allowance, children hostel allowance, uniform allowance, telephone allowance, ये सब हमने करे थे. Perquisites में we were doing this leave travel concession और लीव ट्रैवल कंसेशन के हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, राइट? एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि एलटीए के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि हमारे थोड़े हाथ बैठ जाए एंड देन उसके बाद हम आगे करेंगे, राइट? रिकॉल हो रहा है सब कुछ जो भी हमने प्रीवियस क्लास में करा, राइट? सो एलटीए से करते हैं दोबारा से. We will solve few questions of LTE, which is your leave travel concession, leave travel allowance, and then followed by we will do few more perquisites. So leave travel concession means that the employee is giving you this leave travel allowance, and then you can visit any, like any area within the country. So domestic trips आप करके आ सकते हो और आपको उसका exemption मिल जाएगा, ठीक है? Within the country बोला है तो that means domestic trips. What about the international trips? आप बोलोगे मैं तो चलो दुबई घूमकर आ गया ना, वो नहीं, ठीक है? सिर्फ डोमेस्टिक ही चलेगा. असम जाओ, लेह लद्दाख जाओ, कहीं भी जाओ, गोवा जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डोमेस्टिक ट्रिप्स है, एलटी आपको मिल रहा है, सैलरी में क्लेम कर सकते हो. इसका जो एग्जेम्पशन है इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(5). नाउ ये जो एग्जेम्पशन है इसको हमने डिवाइड किया है इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1, इफ इट इज ट्रेवल बाय एयर. सो ट्रेवल बाय एयर में हमारा क्या होगा कि ये हम एग्जेम्प्ट मानेंगे. तब कैसे, क्या अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी? Actual expense, and then I need to compare the actual expense with the economic class fare, which is of Air India.
just compare the same. Whatever is lower, whichever is lower is going to be your exempt amount. ठीक है. ट्रैवल बाय एनी अदर मोड, हमने बोला था कि अगर आपका एयर से नहीं जा सकते तो आप रेलवे से जाओ. अब अगर आप रेलवे से जा रहे हो तो व्हाट इज द एग्जेम्पशन अमाउंट? इन दैट केस वी नीड टू कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंस विद द फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर. सो जो रेलवे का एसी का फेयर होता है ना, वो भी फर्स्ट क्लास वाला, उसको कंपेयर करो. दिस व्हिचएवर इज लोअर इज गोइंग टू बी योर एग्जेम्पशन अमाउंट. अच्छा, अब एनी अदर मोड में तो रेलवे के अलावा बसेस भी आती हैं, टोंगा भी आता है, कुछ भी आ सकता है, कार वगैरह भी आ सकता है. तो आपको देखना है कि रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट फ्यू सिटीज, वहां पे बसेस अवेलेबल होती हैं. तो एक पॉइंट तक तो आप जाते हो से कार से, सॉरी, एक पॉइंट तक तो आप जाते हो ट्रेन से, उसके बाद आपका बस ही अवेलेबल होता है. ठीक है. जैसे तो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिटी अवेलेबल है, आंसर इज यस. तो आपको एक्चुअल एक्सपेंस देखना है और डिलक्स क्लास बस फेयर आपको देखना है. ठीक है. अगर बस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस व्हाट क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंस को आपको कंपेयर करना है फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस. ठीक है. सिमिलर डिस्टेंस का रेलवे फेयर जो है उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा. देन इन दैट केस आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी. फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था. एम्प्लॉयर है, उसने एलटीए दिया 10,000 रुपीज पर मंथ का. सो एज यू कैन सी इट इज 1,20,000 रुपीज. अब अपने को एग्जेम्पशन निकालनी है. तो सेल्फ का है, स्पाउस का है, चिल्ड्रन का है, डिपेंडेंट रिलेटिव है. ठीक है. अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रदर डिपेंडेंट नहीं था, तो ब्रदर को हटा दिया. भले ही वो रिलेटिव है बट डिपेंडेंट नहीं था, तो उसको हटा दिया. उस हिसाब से मैंने 60,000 का एग्जेम्पशन लिया और मेरा आ गया. एलटीसी इज अवेलेबल फॉर 2 years ओनली इन ब्लॉक ऑफ 4 years. ठीक है. LTC is available for 2 years only in a block of 4 years. ठीक है. सो LTC जो है आपका 4 साल के ब्लॉक में 2 ही बार मिलता है. इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ LTC वाले टॉपिक को. अब बात आती है बच्चों की. ठीक है. चाइल्ड. तो ये जो LTC की एग्जेम्पशन है ना, अप टू 2 चाइल्ड अवेलेबल है. अप टू 2 चाइल्ड अवेलेबल है. ठीक है. तो दैट मीन सपोज करो आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो. ठीक है. कहीं से असम में या गोवा में एक्सेट्रा, बट यू हैव 3 चिल्ड्रन. सारे छोटे छोटे हैं, डिपेंडेंट है, सब कुछ है, बट स्टिल स्टिल 2 तक का ही हम एग्जाम्पशन लेंगे, 4 का नहीं लेंगे, 3 का नहीं लेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. अच्छा, एक और चीज है इसमें एलटीसी में कि सपोज करो जब फर्स्ट टाइम था तब आपका एक चाइल्ड हुआ. सेकेंड टाइम में आपके ट्विंस हो गए, तो टोटल 3 चाइल्ड हो गए, राइट? तो इस केस में हम तीनों का एग्जाम्पशन ले लेंगे. कि फर्स्ट टाइम में एक चाइल्ड हुआ, सेकेंड टाइम में आपका ट्विंस हो गए, तो इस केस में तीनों का ही हम एग्जाम्पशन ले लेंगे. व्हाट अबाउट फर्स्ट टाइम में आपके ट्विंस हो गए, सेकेंड टाइम में आपका एक चाइल्ड हुआ, तो अब हम यहाँ पे ट्विंस का ले लेंगे, फर्स्ट चाइल्ड का नहीं लेंगे. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. ओके. नाउ सो दिस इज रिलेटेड टू योर LTC. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स से LT received from employer is INR 20,000 rupees per month. Okay. Let's talk about financial 24-25 only. पहली ट्रिप थी आपकी ट्रिप 1, दिल्ली टू गोवा. ओके. एंड इस ट्रिप में
Flight tickets, business class is INR 60,000. This is your per person. Then hotel accommodation cost, INR 35,000. Food expenses, INR 15,000. Okay. And traveler कौन-कौन थे? The employee, spouse, friend, or independent brother. This is first trip. Within the same year, second trip, this is say in the month of July 24. Then let's say Jan 25, he made second trip from Delhi to, let's say, Kerala. Again, it is per person cost. Flight tickets, INR 15,000. Hotel, INR 8,000. Food, INR 5,000. ओके, इस केस में इकोनॉमी क्लास टिकट है 10,000 का पर पर्सन, और ये तो इकोनॉमी में ही है। बट जो ट्रैवलर है वो कौन कौन है? एम्प्लॉय, स्पाउस, फादर, मदर, डिपेंडेंट ब्रदर। यस, यू नीड टू कैलकुलेट कि मेरा एलटीए का एग्जेम्पशन या टैक्सेबिलिटी क्या होगी। आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज टेक आउट योर टाइम, 2 से 5 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ट्रैवल बाय एयर है तो मुझे एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास फेयर को कंपेयर करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। टैक्सेबल एलटीए कितना होना चाहिए? हाँ जी, प्लीज कैलकुलेट टैक्सेबल एचआरए। एवरीवन, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन's आंसर। Yes, done. I'm not getting so many answers. Sudeep is saying 80,000. Praveen is saying 160. 160 is also Rajiv. So are you guys taking both the trips? आप दोनों ट्रिप लेके चल रहे हो? मैम जाने आने का मतलब दिल्ली टू गोवा, जैसे 2 पर्सन है तो मैंने 4 टिकट काउंट किया आने और जाने का। हाँ, ठीक है। और बाकी सब लोग तो दिल्ली टू केरला भी लिए। चलो देखो, ध्यान से देखो। एलटीए रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज 20,000 रुपीज पर मंथ, तो इसको हम लिखेंगे एलटीए ₹2,40,000 हो गया, राइट? नाउ आई विल गिव दिस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(5). अब एग्जेम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे कंपेयर करना है एक्चुअल एक्सपेंस, सेकेंड इकोनॉमी क्लास का फेयर,
एक ही ट्रिप ले सकते हो कोई भी आप। अब इसमें एक्चुअल एक्सपेंस देखो तो एम्प्लॉय का होगा, स्पाउस का होगा, ये दोनों मेरे आएंगे नहीं। डू यू ऑल एग्री? एम्प्लॉय और स्पाउस ही आएगा। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 1,20,000। ये तो जाने का हो गया प्लस आने का। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। एंड हियर इन दिस केस इट वुड बी 15,000। इस पे भी आते हैं एक बार। बट इकोनॉमी वाला क्या है? 10,000 पर पर्सन। ओके, सो इट वुड बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा मेरा 40,000 रुपए, और ये हो जाएगा मेरा 240। तो अगर मैं दिल्ली टू गोवा वाली ट्रिप लूं तो ये तो मेरा 40,000 रुपए ही एग्जाम्प्ट होगा। 2 लाख रुपए मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बार मैं ले लेती हूँ केरला वाला, ये तो मेरा दिल्ली वाला था। दिल्ली टू केरला में ये सारी माइंड में ही आपको वैसे कैलकुलेशंस करनी है या रफ में, बट अभी तो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो एक्चुअल एक्सपेंस है मेरा कितना? किन किन का लेंगे? एम्प्लॉय होगा, स्पाउस होगा, फादर हो गए, मदर हो गए, डिपेंडेंट ब्रदर नहीं आएगा, तो 4 लोगों का आएगा। फ्लाइट टिकट्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 एक तरीके से जाने का, और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। तो मेरा जो टैक्सेबल एलटी होगा वो 1,20,000 का होगा। 1 लाख कैसे टैक्सेबल कर रहे हो आप? सी, किसी भी एक ट्रिप का ही मुझे कंसिडर करना होता है, बाकी ट्रिप्स का नहीं करना होता। ओके, तो मैं दिल्ली टू केरला वाली ट्रिप को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, 1,20,000 वुड बी द आंसर। ये मेरा नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, perfect. Now let's proceed further with our few topics, जैसे मेरा रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा, जो पीछे प्रीवियस जो हाँ। क्वेश्चन हो, हमने जो ये उसके लिए फर्स्ट ट्रिप में 14,000 की एग्जाम्पशन मिला हमें। ठीक है, 14,000 ही हम ले सकते थे उसमें। हम्म दूसरी ट्रिप में 1,20,000 हो रहे हैं, तो टोटल 2 बार हम ले सकते हैं ना साल में। तो टोटल हो गया आपका 1,60,000, 1,20,000 प्लस 40। नहीं नहीं, अ, गलत है। मतलब 2 इयर्स में 2 बार ले सकते हैं, तो मतलब एक साल में तो एक ही बार ले पाओगे। ओके। हाँ, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स आप 2 बार क्लेम कर सकते हो। किसी भी ईयर में 2 बार, मतलब किसी भी 2 इयर्स में क्लेम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज पूछना था मुझे, तो ये जो 2,40,000 था मान लीजिए टोटल मिला था मुझे, उसमें 1,20,000 आप जो मैक्सिमम जो खर्चा हुआ है वही हम क्लेम करेंगे, और जो हम्म, रिमेनिंग रहेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। जो रिमेनिंग ये बचता है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है ना, या जो खर्चा होता है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है? वो तो एग्जाम्पशन हो जाता है ना, जो खर्चा हो जाता है। जो रिमेनिंग बचता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद द रेंट फ्री एकोमोडेशन नाउ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स टॉक अबाउट रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन 2 टाइप से आपको मिल सकता है। एक रेंट फ्री एकोमोडेशन तो मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, राइट? तो जैसे ये जो आर्मी के ऑफिसर्स हो गए, या जो ओएनजीसी वगैरह, ये जो कंपनीज हैं, इनको जो भी हमें एकोमोडेशन मिलता है वो मेरा आएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन में, क्योंकि उनसे कुछ पैसा नहीं लिया जाता, या लिया भी जाता तो बहुत रेयर, बहुत कम अमाउंट लिया जाता है। हो सकता है उस घर की वैल्यू ज्यादा हो, बट आपसे कम अमाउंट रिकवर किया जाता है, राइट? सो दिस इज योर रेंट फ्री एकोमोडेशन। नाउ इस रेंट फ्री एकोमोडेशन में, यस,
सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देते हो तो उस केस में इट इज टैक्सेबल as per license fees decided by government. तो जो गवर्नमेंट आपकी लाइसेंस फीस डिसाइड करती है ना उसके बेसिस पे वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? जो गवर्नमेंट आपकी लाइसेंस फीस क्या होती है? लाइसेंस फीस होती है नॉमिनल फीस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है इस प्रॉपर्टी को मैं आपको फ्री में तो दे रहा हूँ बट इसका लाइसेंस फीस लेट्स से अगर मार्केट में आपको इस प्रॉपर्टी का रेंट अगर 15,000 में मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे 2,000 रुपए दे दीजिए। सो दैट इज ए लाइसेंस फीस, nominal rent which is basically considered by the government entity. तो वो लाइसेंस फीस हमारा जो है टैक्सेबल हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर कोई एकोमोडेशन दिया गया तो वो जो लाइसेंस फीस है उसके बेसिस पे वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक है? चलो, for the non-government employees, okay, I need to check whether the accommodation is owned by employer. So अपने को चेक करना है कि accommodation is owned by employer and if it is rented by employer. तो रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर किसी को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलता है तो हमें चेक करना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस पर टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो हमें देखना है कि क्या एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ऑन करा है या हायर करा है। तो इस केस में हमें अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ये हम चेक करते हैं पॉपुलेशन से। सो अगर वो जो एकोमोडेशन है जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, अगर आपकी पॉपुलेशन 0 से लेकर 15 लाख तक है, in that case the perquisited value of 5% of salary. Above 15 लाख से अगर 40 लाख तक है तो 7.5% of salary. और above 40 लाख है तो 10% of salary. ओके, नाउ आपको ये समझना होगा कि ये हम एक्चुअल में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है? देखो, ध्यान से सुनना, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एक बात बताओ, अगर आर्मी के किसी बंदे को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया और उस एकोमोडेशन की कॉस्ट ऑब्वियसली 50-60 लाख तो मिनिमम होगी, राइट? राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? हमें क्या देखना है? ओके, देखो, रेंट फ्री एकोमोडेशन, सपोज करो किसी आर्मी के बंदे को एकोमोडेशन मिला, ठीक है? अब 50-60 लाख मिनिमम तो कॉस्ट होगी उस एकोमोडेशन की, डू यू ऑल एग्री?
अगर मुझे फ्री में एकोमोडेशन मिल रहा है 50-60 लाख तो मिनिमम होगा उसका कॉस्ट। तो Yes. मतलब मैंने आपको एक बेनिफिट दिया, बट घर तो आपके नाम पे नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में दैट मीन्स ये जो बेनिफिट है उसका कोई वैल्यू निकालना चाहिए मुझे, राइट? बेनिफिट तो मैं दे ही रही हूँ ना आपको नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, उसका मैं कुछ वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। अब वो जो वैल्यू है वो मैं कैसे निकालूंगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में तो लाइसेंस फीस से डिफाइन कर देंगे वो वैल्यू। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, जैसे मुझे याद है मैं टेक महिंद्रा का ऑडिट करने के लिए जाती थी पहले, ठीक है। तो वहां पे गेस्ट हाउसेस थे उनके बनाए हुए थे, कुछ उन्होंने खरीद रखे थे और कुछ उन्होंने बेसिकली रेंट पे ले रखे थे। तो अगर टेक महिंद्रा का जो ये एनएससीजेड है, नोएडा एनएससीजेड, ठीक है, मैं वहां पे ऑडिट के लिए जाती थी, वहां पे हम लोग गेस्ट हाउस वगैरह वो सब देखते थे। तो अपने को ये भी देखना है कि अच्छा उसका उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, उस एरिया के पॉपुलेशन के हिसाब से आई विल डिफाइन माय परक्विजिट वैल्यू। ओके, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरिया का पॉपुलेशन अप टू 15 लाख रुपीस तक है, अप टू 15 लाख तक है तो 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, बट आई होप इससे क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि ये पॉपुलेशन मेरी इस तरीके से डिफाइन होगी। व्हाट अबाउट अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर में आपका जो परक्विजिट वैल्यू है वो कैसे निकलेगा? वो होगा 15% ऑफ सैलरी, और आप इसको कंपेयर करो विद हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है? अलाउंसेस में जो मैंने पढ़ा उसमें मैंने आपको ये बताया था ये मेरा एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अलाउंसेस में जो भी हमने पढ़ा था मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरा एग्जेम्प्ट होगा, कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इतना अमाउंट एग्जाम कर देंगे, 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम कर देंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, हॉस्टल में 300 रुपीज पर मंथ कर देंगे, अगर कोई ब्लाइंड डीफ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपीज पर मंथ एग्जाम कर देंगे। याद है ये सब पढ़ा था मैंने, हमने, Yes. राइट? बट जब परक्विजिट की बात आती है तो वहां पे हम एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, वहां पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये मेरी जो लाइसेंस फीस है, ये जो मेरा 15 लाख की 5% ऑफ सैलरी, ये सब मेरा वैल्यू में, टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, ठीक है। वो बेनिफिट का मुझे वैल्यू निकालना है, ओके, और वो वैल्यू मेरा ये इन फॉर्मूले से निकलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, just give me a second. I have to email someone. Okay, doing fine. It is. Allow me 1 second, just. सॉरी, मुझे बैंक को मेल करना था, मैंने जस्ट अभी भी कर दिया, ठीक है। या ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, अब हम समझते हैं सैलरी का डेफिनेशन क्या होता है। सैलरी, सैलरी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, बेसिक सैलरी तो ले ही लो पूरा का पूरा, ठीक है। डीए भी ले लो अपना, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ले लो, कुछ कमीशन मिला है तो वो भी ले लो, ठीक है। बोनस ले लो, ठीक है। ये सब लेने के बाद आपको जो है पूरा मतलब सैलरी एज इट इज कैलकुलेट कर लो बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका सैलरी का डेफिनेशन है। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरएफए। मेरे क्वेश्चंस बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी, अगर एम्प्लॉय को ये रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है तो एचआरए तो मिलेगा नहीं अलाउंसेस? मिल सकता है बट उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंट तो वो पे ही नहीं कर रहा ना। तो वो टैक्सेबल में आ जाएगा ना, सारा का सारा एचआर? ठीक। Exactly. तो मैं अभी आरएफए के क्वेश्चन आपको शेयर कर रही हूँ, आपको ये विजिबल है स्क्रीन? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं वन बाय वन, ठीक है। टोटल 4 to 5 क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स सॉल्व द सेम।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस लेते हैं पहले. आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड सी द सॉल्यूशन एज वेल. ठीक है, अपने आप से पढ़ोगे तो थोड़ा जल्दी माइंड में आता है. तो टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम, रीड दिस क्वेश्चन. मैम गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय में तो देखना ही नहीं है ना, उसमें तो जो लाइसेंस फी होगी वही होगा, क्योंकि सैलरी का डेफिनेशन वहाँ पे नहीं है ना. यस करेक्ट, बट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है इसका? यस मैम. Yes, यस ma'am. मैम. ठीक है. So, let me read this for all of you. Mr. Singh is a government employee with a basic salary of 60,000 rupees per month. ठीक है. DA भी दे रखा है, HRA भी दे रखा है. He is provided with government accommodation for which the license fees is determined by the government is 6,500 rupees per month. Obviously, government employee है, license fee 6,500 ही आ जाएगा. 6,500 multiplied by 12. You need to calculate the perquisite value. So it is would be 78,000. Acha, I want to ask one question from all of you. Suppose 2,000 rupees per month is recovered from employee. तो उस केस में क्या होगी परक्विजिट वैल्यू? जब 2,000 रुपए मैंने रिकवर कर लिए तो दैट मीन्स 2,000 रुपए का तो बेनिफिट नहीं हुआ एम्प्लॉय को. डू यू ऑल एग्री? रिकवर किस सेंस में मैम? रिकवर इन द सेंस कि हर महीने डिडक्शन सैलरी में से. ओके. हाँ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते रहे एम्प्लॉय से, पूरा नहीं लिया, थोड़ा ले लिया. तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 24,000 माइनस कर देंगे तो इट वुड बी 54,000 रुपीज would be the answer. Are you getting my point? Is it clear? यस मैम. If I'm recovering some amount from any employee, from the employee, then I have to reduce the same. ठीक है. अब ये जो 50,000 होगा मैम, ये तो टैक्सेबल अमाउंट में जुड़ जाएगा ना? हाँ, ये टैक्सेबल होगा तो आपकी सैलरी में ये जुड़ जाएगा. Now, let's talk about this scenario. Okay. In this scenario, Miss Sharma works for a private company in Mumbai. Miss Sharma works for a private company in Mumbai, where my population exceeds 40 lakh and is provided with a rent-free accommodation owned by the company. Her monthly salary details are basic salary 75,000 is given, DA is 15,000, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7,500. एज यू कैन सी मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया सब कुछ, तो मेरी सैलरी आ गई 11,70,000 की. ठीक है. यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. क्योंकि मेरी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 40 लाख से ज्यादा वाली पॉपुलेशन में जो मेरी वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो है 10%. एक्चुअली पहले 15% थी, इसलिए आपको ये दिख रहा है आंसर. सो इन दिस केस माय आंसर वुड बी 1,17,000 पर एनम. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. यस मैम. यस मैम. ठीक है. नाउ लेट्स से जहाँ पे रेंटेड एकोमोडेशन है, मतलब मेरा एम्प्लॉय ने मुझे जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किया वो उसने खुद ही रेंट पे ले रखा है. ठीक है. तो अब इस केस में करते हैं. मिस्टर पटेल वर्क्स फॉर ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन पुणे. पॉपुलेशन इज बिटवीन, लेट मी जस्ट करेक्ट द सेम, बिटवीन 15 to 40 lakhs. ठीक है. 15 to 40 lakhs के बीच में पॉपुलेशन है एंड इज प्रोवाइडेड with a rent-free accommodation rented by the company for 32,000 rupees per month. तो रेंटेड एकोमोडेशन है जिसमें जो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है 32,000 रुपीज पर मंथ है. कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी. यस मैम. तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर वुड बी 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12. सो ये हो जाएगा हमारा 3,84,000. ठीक है. Now, his monthly salary components are basic salary आपको given है 85,000 का, DA आपको given है 17,000 का, कमीशन आपको given है 8,000 का, कन्वेंस अलाउंस आपको given है 6,000 का. You need to calculate the value of perquisite for the financial year. So the value of perquisite for the financial year is when your population is between 15 to 40 lakh. देखो अब ध्यान से सुनना, ये मेरा रेंटेड एकोमोडेशन है, राइट? पॉपुलेशन भी गिवन है. प्लीज टेल मी 15 to 40 लाख के बीच में 7.5% आएगा या 15% ऑफ सैलरी आएगा? 7.5% आएगा ना सैलरी का. बट द एकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. दैट केस में 50% या 15% ऑफ सैलरी के जाएगा. सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, ओके. एम्प्लॉयर ने एकोमोडेट किया है, वो पे कर रहा है ना, एम्प्लॉयर पे कर रहा है. एग्जैक्टली. तो ये रेंटेड एकोमोडेशन है तो यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी ही आएगा. ठीक है, ना कि 7.5%. ये जो पॉपुलेशन वाली जो चीज है ये मेरे लिए इररेलेवेंट है. ओके, आई नीड टू इग्नोर द सेम.
Are you getting my point? Is it clear? Yes, ma'am. So 15% of salary would be 50% of 13,92,000. So whichever is lower is going to be my per gazette value. So 2,08,800 is going to be my per gazette value. अब होता क्या है कि जब आपका सपोज करो फर्निश्ड एकोमोडेशन हो कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको उसमें फर्नीचर वगैरह भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है, एकोमोडेशन है बट फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन ऑल दीज 3 केसेस. If the furniture is provided, then in that case, if it is owned by employer, तो आपको 10% of cost ऐड करना है. If it is rented by employer, then actual rent paid. ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है. मैम फर्निश्ड का डेफिनेशन में सिर्फ फर्नीचर ही ऐड करना है, कुछ और भी मतलब ऐड करना है? प्रॉपर लाइक टेबल फ्रिज वगैरह ये सब भी कभी कभी अलाउड कर देते, प्रॉपर फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब रखा हुआ होता है ना, जैसे पीछे ऐसे. ओके, फर्निश का मतलब वो है, ठीक है. ठीक तो है. अब फर्निश वाले केस में लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे है मिस रेड्डी इज प्रोवाइडेड विद फर्निश्ड अकोमोडेशन इन हैदराबाद. पॉपुलेशन है मेरा 10 to 40 lakhs का बाय हर एम्प्लॉयर एंड द फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इज 5 lakh rupees. ठीक है. मंथली सैलरी दे रखी है अपने को 90,000 की. देखो देखो 0 to 10 to 40 lakhs में एक तो उसको 15 to 40 lakh करना पड़ेगा. एक्चुअली लिमिट्स ना रिसेंटली चेंज हुई है इसलिए थोड़ा सा ये है. 15 to 40 lakh में मेरा आता है 7.5%. तो 7.5% ऑफ 10,80,000 कितना आएगा? इट वुड बी 81,000. ठीक है. और आपको अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अभी हमने पढ़ा था ना फर्नीचर इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 5 लाख रुपीज का 10% ऑफ कॉस्ट हमें ऐड करना है. तो भले ही मेरा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया हो, डज नॉट मैटर. भले ही मेरा डेप्रिसिएशन लग गया हो, खराब हो गया हो, फिर भी मुझे कॉस्ट पे ही 10% पे करना है, विच इज माई 10% ऑफ 5 लाख, विच इज माई 50,000 रुपीज. सो एज यू कैन सी 81,000 प्लस 50,000 वुड बी 1,31,000. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? मतलब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है तो एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली है वो तो आपको आ गई. बट सपोज करो उसमें आपको वो उसने असेट्स भी दे रखे हैं, उसमें आपको वो फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखा है, तो जो भी फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड कर रखा है उसका कॉस्ट का आपको 10% लेना है अगर उसने खुद से ओन किया है. और अगर उसने खुद से ओन नहीं किया तो जो भी वो रेंट वगैरह पे कर रहा होगा उसका तो वो चाहिए होगा. समझ में आया या नहीं आया? प्लीज टेल मी. यस मैम. परफेक्ट. नाउ अगर आप रिकवरी कर रहे हो एम्प्लॉय से तो ऑब्वियसली जितना भी अमाउंट आपने रिकवर करा वो आप माइनस कर दोगे जो भी आपकी परक्विजिट वैल्यू आई उससे. ठीक है. क्योंकि वो जो परक्विजिट वैल्यू है उसमें वो एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है. तो जैसे हमने ऊपर किया था कि वहां पे हम 2,000 रुपीज पर मंथ रिकवर कर रहे थे तो हमने सेम वो माइनस कर दिया एज यू कैन सी. तो रिकवरी वाले में तो आपको जितना वो आप माइनस कर दोगे. ठीक है. मैम अगर शेयरिंग पे दे रखा हो एम्प्लॉयर ने 2 एम्प्लॉय को तो जो कॉस्ट होगा 10% फर्निश वाले में तो दोनों को लगेगा या कैसे करेंगे? फिर डिवाइड हो जाएगा वो ऑब्वियसली. ठीक. ठीक है. किसी और का और कोई क्वेश्चन? ये यहाँ पे अगर फर्नीचर आजकल रेंटल भी मिलता है तो अगर रेंटल पे उन्होंने अगर एम्प्लॉय ने रेंटल बेसिस पे लिया है चाहे कुछ भी ये फर्नीचर, उस केस में क्या होगा? रेंटल का अमाउंट ही ऑनली फॉर जाएगा या टोटल उसका रेंट का वो वैल्यू? जो जाता है पर मंथ जाता है जैसे 600,000 जो भी है वो हम ऐड कर दें. ठीक है. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम. ओके. नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद अ कार फैसिलिटी वाला जो टॉपिक है बट वो थोड़ा सा लाइक लेंदी टॉपिक है. सो आई एम नॉट एबल टू सी कि आज हमारा सारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो आई थिंक इट विल टेक मी 2 more सेशंस. 1 hour का सेशन है ना इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सैलरी खत्म करने में. बट एनीवेज अभी हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:50 एंड द टॉपिक विच आई वांट टू स्टार्ट विल टेक अप्रॉक्स मिनिमम 40 minutes. तो
वो जो कार फैसिलिटी वाला है उसमें टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जो हाँ जी। मतलब दोबारा ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हो चुका है। जो पीएफ वाला जो डिडक्शन होता है, ठीक है, वो बेसिक के ऊपर लगता है, मतलब जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड? ओके, मैं आपको अगर बहुत ही एक्चुअल आंसर करूं लॉ वाइज, तो पीएफ का डिडक्शन लगता था पहले बेसिक प्लस डीए पे, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पीएफ के डिडक्शन से हमारे ना कुछ एडमिन चार्जेस भी जाते हैं जब डिपॉजिट कराया जाता है पीएफ का अमाउंट, करेक्ट। और सारा ग्रेचुइटी वगैरह की सारी जो भी कैलकुलेशन है वो बेसिक पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी कि भले किसी की 1 लाख की सैलरी हो, वो बेसिक रखते थे 5,000 रुपए, करेक्ट। ठीक है, ताकि मुझे ग्रेचुइटी कम पे करना पड़े। बेसिकली पर्पस ये था, मेरा सारा एक्सपेंसेस बेसिक से ही बनता है एज एन एम्प्लॉयर, अगर आप देखो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया, जजमेंट आई, सॉरी, बैक इन 2019, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक काम करो, एचआरए छोड़कर जितने भी सारे फिक्स्ड कंपोनेंट है ना, फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड वाले, जैसे आपके केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ये सब होगा, वो सारे के सारे कंपोनेंट पे आप पीएफ निकालना चालू कर दो, ठीक है। फिर पीएफ में भी अगर आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन है 15,000 रुपए तक की, तो 15,000 में सुप्रीम कोर्ट का ही कोई केस लॉ है, बैंक के केस में उन्होंने बोला कि मिनिमम आपको 15,000 रुपए तो देना ही है पीएफ, ठीक है। उससे ऊपर देना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उससे कम होगा तो फिर नहीं। अगर सैलरी कम है तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो उस पे करना है। तो अब ये चीज है कि लॉ में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो बेसिकली बन गया, बट एक्ट में चेंज नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस नहीं किए गए, तो बस वो जजमेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज वो जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन एक्ट में नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गया। और ईएसआई का भी कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के ऊपर है? ईएसआईसी का उसमें क्या 15,000 से कम सैलरी है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है ईएसआईसी? ईएसआई का होता है 21,000 वाला। 21,000 वाला कॉन्सेप्ट हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है? हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है ईएसआईसी, और पीएफ हर स्टेट के लिए है। ठीक है। हाँ, तो पीएफ उन पे लगता है जिनकी सैलरी 15,000 से कम हो, ईएसआईसी उन पे लगता है जिनकी सैलरी 21,000 से कम हो। वो मैंडेटरी है उनके ऊपर, प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 10 और 20 एम्प्लॉइज हो। तो ईएसआईसी का जो कॉन्सेप्ट ये है, जो डिडक्शन होता है, जो मतलब ईएसआईसी कितना जमा होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वो तो 21,000 से कम जिसका सैलरी है उसका तो कटेगा, वो तो मुझे समझ में आ गया। 21 ये जिसका कम है उसका ईएसआईसी मैंडेटरी, बट ईएसआईसी कितना कटेगा वो कैसे डिसाइड होता है? वो ओनली फॉर बेसिक, और जो भी आपने बताया चारा छोड़ के जो भी होता है वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या हाँ, सेम रहती है? वो जो जजमेंट थी वो ईएसआई के ऊपर नहीं थी, वो पीएफ के ऊपर थी, बट फिर ईएसआई के लिए वही बेसिक प्लस डी है। ओके, ठीक है। हाँ, आप भी देखोगे ना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पीएफ बैक इन 2019, ऐसे कुछ गूगल करोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। 19 ही होगा, 2019 या 20 होगा, बिकॉज मेरे सीए बनने के ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर आया था वो। अभी मुझे मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं सीए बने हुए, तो उसी के आसपास का ये है। थैंक यू। ठीक है। हाँ, किसी और का और कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ जी। मैम, एक चीज़ मुझे पूछना था। इनकम टैक्स जब बना था, जब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो सब पे एप्लीकेबल था, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, मणिपुर हो, असम हो, ठीक है। क्या कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है? मुझे लगता है कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनकम टैक्स पे नहीं करोगे। क्या ये सच बात है? नहीं, सिक्किम में एक है मैम कि जहाँ पे आप इनकम टैक्स नहीं पे कर सकते हो। इंडिया में एक ही स्टेट है वो। तो मैं आपको वो शो भी कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ओपन करूँ कुछ। अगर ऐसा है और आप ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बेल एक्ट से चेक करते हैं। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सबके साथ। वैसे ऐसा तो है नहीं, बट ये दिख रहा है, ये इनकम टैक्स एक्ट है, इसका सेक्शन 1 में लिखा हुआ होता है, क्योंकि एक्ट के सेक्शन 1 में लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो उसको रीड कर लेते हैं। तो बेल एक्ट का लैंग्वेज है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961. It extends to the whole of India. Sikkim is not an exception. सिक्किम में ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ऐसा। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं जो सिक्किम के रिस्पेक्ट में बनाए गए हो, जैसे टी, कॉफी, रबर का है, क्योंकि वहाँ पे वो ज्यादा होता है ना टी वगैरह का। वैसे मैंने इसीलिए पूछा था आपसे, कुछ मेरे डाउट थे इसमें, जो मैंने कल पढ़ा था इसके बारे में, तो ऐसा कहा गया था कि सिक्किम भी एक ऐसा राज्य है इंडिया का जहाँ पे आप इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते। आपके ऊपर है कि आप पे करोगे नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। हाँ जी, हाँ, बट ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट तो पे करना है, बट हम कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बना देते हैं, जैसे टी का है तो टी का एक स्पेसिफिक प्रोविजन है,
या और इन्वेस्टमेंट्स का है, तो वो स्टेट वाइज कुछ स्पेसिफिक बना दिए गए हैं, जैसे सिक्किम काम के लिए बनाए गए हैं, और भी है बिहार वगैरह के लिए भी बनाए गए हैं, तो ताकि जो ये थोड़ा और डेवलप हो जाए, इसको टैक्स से बचाया जा सके। ठीक है। ठीक है। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन किसी का? शायद नहीं। ठीक है। आई एम फाइंडिंग सिक्किम रिमेन्स इंडिया ओनली टैक्स फ्री स्टेट ग्रांटिंग। ओके, देखो अब मैं एक और चीज बताती हूँ सुमित, ये जो प्रियंका ने भी शेयर किया है, ये वाला जो कंटेंट है, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि टैक्स तो लगेगा बट एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वही चीज मैंने बोली कि एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है सेक्शन से, और सिक्किम इज वन ऑफ देम। टैक्स तो लगेगा, जैसे एचआरए पे टैक्स तो लगेगा बट आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, वैसे ही। ठीक है। सो डू यू ऑल हैव एनी अदर क्वेश्चंस और शैल आई वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर।